بڑھتے ہیں. وائی واز دا قرآن ریویلڈ؟ ایک پرشن ہے، کوشچن ہے. قرآن کو کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن کو کیوں اتارا گیا؟ کیوں قرآن کو دیا گیا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ قرآن مجید کو اس دنیا کے اندر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں اتارا گیا اور کیوں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ اس کا جواب دیکھیے. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 3. ہدی ورحمۃ للمحسنین. قرآن کو کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن کو کیوں اتارا گیا؟ اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. ہدی ورحمۃ للمحسنین. یہ قرآن مجید ہدایت ہے. یہ قرآن مجید انسان کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے. یہ قرآن مجید انسان کو جنت کا راستہ دکھلاتا ہے. صرف ہدایت ہی نہیں، ورحمۃ للمحسنین، اور یہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے رحمت ہے. جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، جو قرآن مجید کا اسٹڈی کرتا ہے، جو قرآن مجید کا ادھین کرتا ہے، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ہدی ورحمۃ للمحسنین. یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے. a guidance and a mercy unto the righteous ones. یہ قرآن مجید گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، اور مرسی رحمت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ unto the righteous ones. اس آدمی کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 کے اندر مشہور و معروف آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر شک نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک ایسا قرآن مجید ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کہا قرآن مجید کو، کہیں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے ہدایت کا. اس لیے کہ یہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس قرآن کے ذریعے سے صحیح دشا پا جائے، صحیح راستہ پا جائے، سیدھی راہ کو حاصل کر لیں، جنت کا راستہ حاصل کر لیں. اور چونکہ متقی جو ہوتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری میں ڈوبے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، ایسے لوگ قرآن مجید سے ہدایت زیادہ حاصل کرتے ہیں. اس لیے کہیں قرآن مجید کو ھدی للمتقین کہا گیا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ویسے یہ قرآن مجید ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید تمام کے تمام قسم کی پریشانیاں، مشکلات کا حل قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا. تمام کے تمام سمسیاؤں کا سمادھان، پرابلم کا سلیوشن. اگر ہم چاہتے ہیں قرآن مجید کی طرف ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، تب ہمیں یہ سلیوشن مل جائے گا، سمادھان مل جائے گا، ہمیں وہ صحیح دشا مل جائے گا. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 9، اس کے اندر بھی قرآن مجید کے اندر کیا بیان کیا گیا دیکھیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. اے لوگوں سنو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن مجید انسان کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے. یہ قرآن مجید وہ راستہ دکھلاتا ہے جس راستے کو اختیار کر کے انسان کامیاب ہو جاتا ہے.
یہ قرآن مجید انسان کو وہ راستہ دکھلاتا ہے جس راستے کو اپنا کر کے انسان جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں سناتا ہے، گڈ نیوز دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ان لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کون سی خوشخبری سناتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی انعام ہے، بڑا ہی پرائز ہے، بڑا ہی پرسکار ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور گڈ نیوز دیتا ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، تمہارے لیے بڑا اجر ہے، بڑا پرسکار ہے، بڑا انعام ہے، بڑی بخشش ہے، بڑا پرائز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، دا قرآن contains everything a man needs to know۔ قرآن کے اندر وہ تمام کے تمام چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر وہ تمام کے تمام چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو کامیاب کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام کے تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 89 89، نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے اللہ کے نبی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب کو نازل کیا ہے، ایک ایسی قرآن کو نازل کیا ہے، ایک ایسی کتاب کو ہم نے آپ کو دیا ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس قرآن مجید کے اندر تمام کے تمام چیزوں کا بیان ہے۔ علماء کرام یہ سمجھتے ہوں گے، جو عربی گرامر سے ذرا واقف ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، تبیانا لکل شیء، شیء کا لفظ یا نکرہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اندر، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں، کوئی ایسے مشکلات نہیں، کوئی ایسا سمسیا نہیں جن چیزوں کا بیان قرآن مجید کے اندر نہ کیا گیا ہو۔ تبیانا لکل شیء، قرآن مجید کے اندر تمام کی تمام چیزوں کا بیان ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھے اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں اور قرآن مجید کا اسٹڈی کرنے لگ جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور قرآن مجید کا ادھین کرنے لگ جائیں، ورنہ قرآن مجید کے اندر تمام کی تمام چیزوں کا بیان کھول کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، بتا دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ تبیانا لکل شیء، تمام کی تمام چیزوں کا بیان ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے، یہ قرآن مجید رحمت بھی ہے، یہ قرآن مجید خوشخبری بھی ہے، یعنی یہ قرآن مجید انسان کو ہدایت بھی دیتا ہے، یہ قرآن مجید انسان کے اوپر رحمتوں کا بھی نازل کرتا ہے، یہ قرآن مجید انسان کو خوشخبری بھی سناتا ہے، جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اسے جنت کی گڈ نیوز دیتا ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ مسلمانوں کے لیے گڈ نیوز بھی دیتا ہے، خوشخبری بھی سناتا ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر کسی بھی چیز کو چھوڑا نہ گیا، کسی بھی چیز کو پیچھے نہیں رکھا گیا، تمام کی تمام چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 105 اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور قرآن مجید خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وَمَا
अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और ऐ अल्लाह के नबी हमने आपको इस दुनिया के अंदर भेजा खुशखबरी सुनाने वाला बना करके और डराने वाला बना करके आपको इस दुनिया के अंदर इसलिए भेजा गया ताकि आप लोगों के दरमियान खुशखबरियां दें, लोगों को गुड न्यूज़ सुनाए, उन लोगों को खुशखबरी सुना दें जो अच्छे अमाल करते हैं, जो नमाज का क़याम करते हैं, जो नमाज का एहतिमाम करते हैं, जो रोज़ा का एहतिमाम करते हैं, जो अच्छे अमाल का एहतिमाम करते हैं, जो सदका व खैरात का एहतिमाम करते हैं। ऐसे तमाम के तमाम लोगों को आप खुशखबरी सुना दीजिए, और खुशखबरी सुनाने वाला बनाने के साथ साथ आपको डराने वाला भी बना करके भेजा गया ताकि आप लोगों के सामने जो अच्छे अमाल नहीं करते हैं, जो गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं, जो गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को आप डर भी पैदा कर दीजिए, ऐसे लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ भी पैदा कीजिए। इसलिए आपको मुबश्शिरन व नज़ीरा, बशारत देने वाला और डराने वाला बना करके हमने भेजा है। पता क्या चला कि कुरान मजीद हक के साथ नाजिल हुआ, हक के साथ अल्लाह ने नाजिल किया, और इस कुरान मजीद को नाजिल करने का वाहिद मकसद, एक ही मकसद है। वो मकसद क्या है कि हम इस कुरान मजीद से हिदायत हासिल करें, हम इस कुरान मजीद से नसीहत हासिल करें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अबस व तवल्ला सूरह नंबर 80 आयत नंबर 11 के अंदर फरमाया, कल्ला इन्नहा तज़किरा, ने बट द कुरान इज़ अ रिमाइंडर, नहीं बल्कि ये कुरान मजीद हिदायत है, ये कुरान मजीद नसीहत है, ये कुरान मजीद रिमाइंडर है, हमें याद दिलाता है, हमें याद दिलाता है। जब हम गलतियों के दलदल में फंसते चले जाते हैं तब ये कुरान मजीद हमें रिमाइंड कराता है, क्या इंसानों अपने आप को वापस ले आओ, गुनाहों के दलदल से वापस ले आओ, अल्लाह के दरबार में आ जाओ, अल्लाह को पुकारने वाला बन जाओ, अल्लाह को याद करने वाला बन जाओ। अभी आपके सामने मौलाना मज़ाहिर साहब बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे और उसमें नमाज के ताल्लुक़ से भी बड़ी अहम बातें पेश की। वो 7 किस्म के लोग जो खुशनसीब होंगे, अर्श के साए तले जिनको जगह मिलेगी, उन 7 किस्म के लोगों का बयान भी उन्होंने किया। ये तमाम के तमाम चीज़ें हम कब हासिल कर पाएंगे? जब कुरान मजीद का मुताला करेंगे, कुरान मजीद का स्टडी करेंगे, कुरान मजीद का अध्ययन करेंगे, कुरान मजीद के अंदर गौर व फिक्र करेंगे, तब जाकर के हमें ये पता चलेगा। अब ये सवाल पैदा होता है, आ रिमाइंडर फॉर whom? ये कुरान मजीद किसके लिए रिमाइंडर है? ये कुरान मजीद किसके लिए नसीहत है? ये कुरान मजीद किसके लिए इबरत और हिदायत है? बट ऑफ कोर्स फॉर मैनकाइंड, सॉल्यूशन फॉर इंटायर सोसाइटी एंड मैनकाइंड। ये कुरान मजीद पूरी इंसानियत के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये कुरान मजीद है। पूरे इंसानियत के मुश्किलात का हल अगर हम तलाशना चाहते हैं, कुरान मजीद के अंदर हमें तलाशना पड़ेगा। कुरान मजीद ये सॉल्यूशन फॉर इंटायर सोसाइटी एंड ऑल मैनकाइंड, पूरे समाज का सॉल्यूशन कुरान मजीद के अंदर है। लेकिन ये कुरान मजीद पूरे समाज का सॉल्यूशन कब होगा? ये हमें एक पॉइंट याद रखना चाहिए। जब हम कुरान मजीद की आयतों का तर्जमा पढ़ने के बाद उसकी तफसीर, उसका व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक मैं इशारा देता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस है, ऐ सहाबा इकराम तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ कर के जा रहा हूँ, लम तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन 2 चीज़ों को थामे रहोगे गुमराह ना होगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं कर सकती,
दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सीधे रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ हटा नहीं सकती। तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक तुम मजबूती के साथ थामे रहोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, गुमराह नहीं कर सकती। नंबर एक किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली, नंबर एक अल्लाह तबारक व तआला की किताब, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम यानी कुरान मजीद, और नंबर दो वो सुन्नत रसूली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। जब तक तुम इन दोनों चीजों को थामे रहोगे, कुरान को थामे रहोगे, हदीस को थामे रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सीधे रास्ते से हटा नहीं सकती, तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती, तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं कर सकती। पता क्या चला कि अगर हम इस कुरान मजीद को सॉल्यूशन के तौर पर लेना चाहते हैं, इस कुरान मजीद को हल के तौर पर लेना चाहते हैं, एक कुरान मजीद को अगर हम समाधान के तौर पर लेना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद की आयतों का तर्जमा पढ़ने के साथ साथ उसका व्याख्या, विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन, तफसीर हदीस की रोशनी में लें। जब ये बात आई है तो मैं ज़रा आपके सामने वाज़ेह कर दूं कुछ बातों के ज़रिए से। आजकल ये नया नया फितना चालू हुआ है। कोई भी बांग्ला ज़ुबान में एक दो किताब पढ़ करके, कोई भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक दो किताब पढ़ करके, और वो कहता है कि मैं दावत का काम करना चाहता हूँ, मैं दाई बनना चाहता हूँ। बल्लिगु अन्नी वलो आया, सही बुखारी की इस हदीस को वो दलील के तौर पर पेश करते हैं कि बल्लिगु अन्नी वलो आया। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अगर एक आयत तुम्हें पता हो तो मेरी तरफ से पहुंचा दो। लेकिन आप लोग ज़रा याद रखें, यहाँ अल्लाह के नबी ने क्या कहा? बल्लिगु अन्नी, अन्नी, अन्नी का लफ्ज़ है, यहाँ गौर करने की ज़रूरत है। बल्लिगु अन्नी, मुझसे, अगर मुझसे तुम्हें एक भी आयत पहुंची, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आयत अगर पहुंची, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब क्या है? उस आयत का बैकग्राउंड, उस आयत का आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, तमाम के तमाम चीज़ों का जब ज्ञान हमारे पास रहेगा, नॉलेज रहेगा, तब हमारे लिए ये जायज़ है कि हम उस आयत के बारे में किसी के सामने बयान करें। उससे पहले जायज़ नहीं है। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जमा पढ़ करके अगर हम व्याख्या करना शुरू कर दें तो गलतियां होगी। कैसे गलती होगी? बहुत सारे लोग समझते हैं, नए नए जो किताब पढ़ना शुरू करते हैं ना, एक आयत पढ़ कर ना मौलवी साहब यहाँ तो ये कहा जा रहा है, हदीस पढ़ करके ना मौलवी साहब यहाँ तो ये कहा जा रहा है। आप लोग सब गलती कर रहे हैं, आप लोग कहते नहीं हैं। ये नया नया जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, इस तरह करते हैं। छोटी मछलियों को आप देखें ना, पानी के अंदर बहुत कूदती है। कभी आपने तीमी माछ को कूदते हुए देखा है? वो समुंदर के नीचे रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो पहाड़ को समुंदर के अंदर रहता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो एक जहाज़ को भी फाड़ देती है, जब शक्ति का प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एक दो किताब पढ़ करके फड़फड़ाने लगते हैं, एक दो किताब पढ़ करके फतवा देना शुरू कर देते हैं, एक दो किताब पढ़ करके बड़े बड़े मुश्किल से मुश्किल मसला का हल निकालना शुरू कर देते हैं, ये बड़ा फितना है। और ये क्या कहते हैं कि हम दावत का काम करना चाहते हैं, और क्या कहते हैं कि हम मजबूर हैं। वो कहते हैं कि हमारे आसपास में, हमारे अगल बगल में सब मौलवी क्या है, उलमाए सू है, कोई भी हक़ानी आलिम नहीं है, इसलिए मैं मजबूर होकर के दावत का काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि मैं मजबूर होकर के दावत का काम करता हूँ, ऐसे जितने भी ब्रदर्स बने हुए हैं जो कहते हैं कि मैं मजबूर होकर के दावत का काम करता हूँ, मैं आप तमाम लोगों से इस जलसा के माध्यम से एक सवाल करके जाता हूँ। अगर आपकी बीवी को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, आपके बेटे को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, आपके अब्बू को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, और सर्जन के आने में देरी हो रही हो, तो क्या आप ये करेंगे कि अरे सर्जन के आने में तो अभी लेट है, वो ताख़ीर कर रहा है, चलो मैं ही छुरी वगैरह लेकर के ऑपरेशन करना शुरू कर देता हूँ, मजबूर हूँ? करेंगे आप?
अरे आप नहीं हाथ उठा, आप हाथ नहीं लगाएंगे, आपको डर है कि कहीं वो पेशेंट मर ना जाए। जिस तरह आपको डर है कि कहीं वो पेशेंट मर ना जाए, वो मरीज मर ना जाए, उसी तरह शरीयत के मामले में जब हम एक दो आयत और एक दो हदीस पढ़ करके फतवा देना शुरू करेंगे, शरीयत का चेहरा भी बिगड़ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अरे हम क्या कौन होते हैं, हम तो पढ़ाई करके अरबी ज़ुबान को सीखे हैं। साहबा इकराम की ज़ुबान क्या थी बताइए आप लोग, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? साहबा इकराम की ज़ुबान कौन सी थी? अरबी ज़ुबान थी, मातृभाषा उनकी अरबी थी, मदर टंग, मातृ ज़ुबान उनकी अरबी थी। लेकिन फिर भी वो बहुत सारी आयत का माना और मतलब नहीं समझ पाए जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े नहीं किया, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया, व्याख्या नहीं किया। मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ एक आयत पढ़ता हूँ, वरना दूसरी तरफ बात चली जाएगी। बहुत सारी मिसालें हैं कुरान मजीद के अंदर, मैं एक मिसाल के तौर पर एक आयत पेश करता हूँ। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31, इत्तखज़ू आबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूदियों के बारे में कहा गया, यहूदियों ने अपने उलमा को, यहूदियों ने अपने आलिमों को, अपने फाजिलों को अल्लाह को छोड़कर के रब बना लिया। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े लफ्ज़ों में बयान किया है, उन लोगों ने अपने आलिमों को रब बना लिया अल्लाह को छोड़ करके। जब ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने तिलावत की, अदी बिन हातिम एक मशहूर सहाबी, अदी बिन हातिम जिस सहाबी का नाम है, अदी बिन हातिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर के सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, इस आयत के अंदर कहा जा रहा है कि यहूदियों ने अपने आलिमों को रब बना लिया है, यहूदियों ने अपने आलिमों को अपना रब बना लिया है अल्लाह को छोड़ करके। ऐ अल्लाह के नबी, हमने तो नहीं देखा कि यहूदियों में से कोई अपने आलिम के सामने सजदा करता है, हमने तो नहीं देखा कि कोई यहूदी अपने आलिम के सामने जा करके माथा टेकता है, कोई सजदा भी नहीं करता है, कोई माथा भी नहीं टेकता है, कोई अपने आलिम की इबादत भी नहीं करता है, उपासना भी नहीं करता है, अपने आलिम की पूजा पाठ भी नहीं करता है। फिर कैसे कहा जा रहा है, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि यहूदियों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों को रब बना लिया? ये हदीस आपको अल्लामा अलबानी की सही तिरमिज़ी के अंदर आपको मिल जाएगी। अदी बिन हातिम ने जब ये सवाल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए कहा, ऐ अदी बिन हातिम सुनो, जब इनके आलिम, जब इनके उलमा इकराम किसी भी चीज़ को हलाल कह देते हैं, ये सब के सब आंखें बंद करके, सर झुका करके उन तमाम के तमाम चीज़ों को हलाल मान लेते हैं। जब इनका कोई भी आलिम किसी भी चीज़ को हराम कह देता है, इनके कोई भी इनका आदमी आंखें झुका करके, सर झुका करके उस चीज को हराम मान लेता है। ऐ अदी बिन हातिम, तुम कहो, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या ऐसा मामला नहीं है, क्या ऐसा माजरा नहीं है, क्या ऐसा नहीं होता है? अदी बिन हातिम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जरूर होता है। हमने देखा कि इनका आलिम जब कह देता है ये हलाल है, वो हलाल मान लेता है, इनका आलिम जब कह देता है ये हराम है, वो हराम मान लेता है। अल्लाह के नबी ने आगे बयान किया, फतिल का इबादतुहुम, ऐ अदी बिन हातिम, यही माना है कि उन लोगों ने अपने आलिमों की इबादत की, अपने आलिमों को रब बना लिया, अपने आलिमों को अल्लाह को छोड़ करके परवरदिगार बना लिया, यही माना है। क्या समझे? अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बयान किया कि यहूदियों ने अपने आलिमों को अल्लाह को छोड़ करके रब बना लिया। अदी बिन हातिम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, ये यहूदी कोई भी अपने आलिम के सामने सजदा नहीं करता, सर नहीं झुकाता, इबादत नहीं करता, फिर कैसे अल्लाह ताला कह रहा है कि इन लोगों ने अल्लाह को छोड़ करके रब बना लिया? नहीं समझ में आई उनको बात। ये कौन थे? अदी बिन हातिम सहाबी, इनकी ज़ुबान अरबी ज़ुबान थी, नहीं समझ पा रहे हैं, इनकी ज़ुबान अरबी ज़ुबान थी, मातृभाषा अरबी थी,
پھر بھی یہ نہیں سمجھ پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا عدی بن حاتم اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی عالم کہے کہ یہ حلال اور کوئی آدمی اگر آنکھ بند کر کے کہ میرے عالم نے کہا ہے, میرے علاقے کے عالم نے, یا میں جسے بڑا سمجھتا ہوں اس نے کہا ہے اس لیے یہ صحیح ہے, دلیل کی کوئی توقع نہیں, دلیل کا کوئی پاس و لحاظ نہیں, آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے یہ حرام ہے, حرام ہے, آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے عالموں کو رب بنا لیا. ایک مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کیا. اس طرح سے بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ہے جن آیتوں کا معنی اور مطلب, صحیح معنی اور مطلب کیا ہے, اس معنی کے اندر گہرائی کیا ہے, ڈیپتھ کیا ہے اس میننگ کے اندر, صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا, جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویاخیا کر کے نہیں سمجھایا, ایکسپلینیشن نہیں کیا, تفسیر نہیں کیا, تب تک صحابہ کرام بھی نہیں سمجھے جن کی عربی زبان ماتری بھاشا مادری زبان تھی. ہم پھر کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ٹوٹی پھوٹی زبان میں بات کرتے ہیں, ہم تو سیکھتے ہیں, ہمیں تو اس طرح سے اچھی طرح سے عربی بھی نہیں آتی ہے, اور جو لوگ ایک دو کتاب پڑھتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں, عربی کو صحیح طریقے سے اچارن بھی نہیں کر پاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں, میں داعی بننا چاہتا ہوں. آپ پڑھیے, میں یہ ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں کہ پڑھنا نہیں ہے, پڑھنا ہے لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا ہے, علماء اکرام کی صحبت میں رہ کر کے پڑھنا ہے, علماء اکرام سے پوچھ کر کے پڑھنا ہے, علماء اکرام کے پاس رہ کر کے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. اپنے سے پڑھ کر کے سیلف اسٹڈی کے ذریعے سے فتویٰ مارنے لگیں گے, پریشانی ہوگی, اور یہی آج ہو رہا ہے. سیلف اسٹڈی ہی کا یہ نتیجہ ہے, سیلف اسٹڈی کا ہی ایک نتیجہ ہے. ایک بھائی سے جب سوال کیا گیا کہ اگر کوئی عورت پردہ نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا, ڈائریکٹ جواب دے دیا. کوئی مطلب یہ سپر فاسٹ ایکسپریس ہیں, ہاں راجدھانی سے بھی فاسٹ ہے یہ. علماء اکرام سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ وقت لے لیتے ہیں, سوچتے ہیں, لیکن یہ ایک دم سپر فاسٹ, جو ہی سوال کیا گیا پھٹ سے جواب, فوراً ایک دم چٹ سے آنسر. کیا کہ اگر کوئی فرض کو ترک کرے, فرض کو چھوڑے, وہ کافر ہو گیا, وہ کافر, اسلام سے خارج. اور ایسی عورت جو بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہے وہ کافر ہے. اور ایسی عورت کے ساتھ, ایسی بیوی کے ساتھ جو شوہر جمع کرے گا, ملن کرے گا, رات میں انٹرکورس کرے گا, اس نے زنا کیا, اسے صبح ہوتے ہی غسل دلا کر کے کلمہ شہادہ پڑھانے کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا خطرناک فتویٰ. میں یہ نہیں کہتا کہ پردہ مت کیجئے, پردہ نہ کرنا یہ بڑا ایک سنگین جرم ہے, سنگین اپرادھ ہے, سنگین گناہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر پردہ نہیں کرتی ہے تو کافر ہو گئی, کوئی عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ اسلام سے نکل گئی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ آپے میں آ کر کے اس طرح فتویٰ نہیں دے سکتے, آپ جوش میں آ کر کے الٹا پلٹا فتویٰ نہیں دے سکتے. آپ کو دروگا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے, آپ کو پولیس اور پرشاسن بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے کہ آپ ایک دم مار کر کے, پکڑ کر کے اور گالی دے کر کے آپ فتویٰ دیں گے. ہاں, میں یہ استعمال کر رہا ہوں, گالی دے کر کے. کچھ ایسے بھی برادرز ہیں جو جلسہ جلوس کے نام پر, دعوت کے نام پر گالی بکتے ہیں. میں یہ اپنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ کر کے جاتا ہوں, ہاں وہ گالی بکتے ہیں. ہاں یہ گالی ہے کہ اگر شروتا سامعین کو کہا جائے کاپروس, اگر کہا جائے کہ تم سب کے سب کاپروس ہو اور تم سب کے سب تمہارے باپ, تم سب کے سب مورکھ ہو, یہ گالی ہے. یہ لہجہ, یہ بھنگیما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ یہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ اتنا نرم لہجہ تھا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے اللہ کے نبی, اللہ کی رحمت سے آپ کے اندر نرم مزاجی ہے, آپ کے اندر نرم لہجہ کو پیدا کر دیا گیا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اے اللہ کے نبی, اگر آپ کے اندر گرم مزاجی ہوتی, اگر آپ کا مزاج بھی سخت مزاج ہوتا, لنفضوا من حولک, تو آپ کے اگل بغل سے یہ سب کے سب صحابہ کرام اور یہ کافرین مشرکین جن کے سامنے آپ دعوت کا کام کرتے ہیں, یہ سب کے سب آپ سے چھٹ جاتے ہیں, آپ سے دور ہو جاتے ہیں, دوری اختیار کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ نرم لہجہ تھا.
उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह तबारक व तआला का साफ बयान है, अपने रब की तरफ बुलाओ नसीहत के साथ और बेहतरीन हिकमत और कौशल के साथ। ये नहीं कि आप किसी को डरा करके, धमका करके, गालियाँ बक करके, किसी के दिल में चोट पहुँचा करके आप दावत का काम करेंगे। ये सब क्यों हो रहा है? कुरान और हदीस से वाकिफ़ नहीं है, कुरान और हदीस से आगाही नहीं है, पता नहीं है उनको। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, बात जहाँ से आगे बढ़ी कि अगर हम कुरान मजीद को सॉल्यूशन के तौर पर लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद का व्याख्या, विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन, तफसीर हदीस की रोशनी में लें। और हम हदीस की रोशनी में नहीं लेते हैं। कुरान मजीद का एक तर्जमा पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि अरे कुरान मजीद तो अभी बांग्ला में अवेलेबल है, उर्दू में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, मैं इंग्लिश का माहिर एक्सपर्ट हूँ, मैं उर्दू का माहिर हूँ, मैं बांग्ला का एकदम पारदर्शी आदमी हूँ, मैं बांग्ला में पढ़ूंगा, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है शरीयत, इतना आसान नहीं है। हाँ, शरीयत आसान है किन लोगों के लिए? जो कुरान मजीद के अंदर, हदीस के अंदर शरीयत को लेकर के डूबे रहते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उन लोगों के लिए आसान है। हमारे लिए आसान नहीं है कि एक दो किताब पढ़ करके मैं बकना शुरू कर दूं, एक दो हदीस का तर्जमा पढ़ करके मैं फतवा देना शुरू कर दूं। बड़े बड़े मसाइल में जहां उलमा इकराम जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, और ऐसे ब्रदर्स जो फटाफट जवाब, क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा जाता है। आओ सवाल करो, जवाब लो, आओ क्वेश्चन करो, जवाब आंसर लो, फट से जवाब लो। हमें डरने की ज़रूरत है। कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने से फतवा नहीं निकलता है, तर्जमा के साथ साथ न जाने कितनी चीज़ें हैं। एक मौलवी बनने के लिए कम से कम 14-15 साल पढ़ना पड़ता है, छोटा मोटा मौलवी बनने के लिए। बड़ा मौलवी नहीं, बड़का मौलवी नहीं, छोटका मौलवी, छोटा मोटा मौलवी बनने के लिए 14-15 साल पढ़ना पड़ता है। और ये सोचता है कि एक साल में मैं बांग्ला जुबान में किताब पढ़ करके, अंग्रेजी जुबान में, उर्दू जुबान में पढ़ करके मैं बड़ा मुफ्ती और बड़ा अल्लामा बन जाऊंगा। नहीं, इतना आसान नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। और ये सब बातें जब हम लोग करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये लोग जलते हैं, हसद करते हैं। नहीं, अल्लाह गवाह, हसद नहीं करते हैं। आप भी दावत का काम कीजिए, लेकिन आप सही तरीके से पढ़ें, सही तरीके से इल्म हासिल करें, नॉलेज हासिल करें, उलमा इकराम की सोहबत में रहें, उसके बाद आए और दावत का काम करें। आकर के स्टेज में आकर के उल्टा पल्टा फतवा देंगे, सरदार मॉडल को गाली देंगे, इधर उधर को कहेंगे और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। और नौजवान का खून तो गर्म है, वो तो चाहता ही कि इसी तरह की तकरीर हो और वो आपकी वाहवाही करेंगे और आपको स्टेज पर दावत देंगे। ये सही नहीं है। ये मैं नाम लेकर के कह सकता हूँ, लेकिन आज नाम नहीं ले रहा हूँ, इंशाअल्लाह कभी नाम लेकर के कहूँगा। जितने भी ब्रदर हैं, मैं एक ऐसे ब्रदर का नाम लूँगा, आप लोग हक्का बक्का हो जाएंगे। हो सकता है आप लोग कोई मेरा दुश्मन बन जाए, लेकिन मैं दलील के साथ पेश कर सकता हूँ। वो सब दलील मेरे पास मौजूद है, मेरे मोबाइल के अंदर भी है और मैं वो पेश भी कर सकता हूँ। जो इंटरनेशनल दाई बना हुआ है, ऐसे भी हैं इंटरनेशनल दाई बना हुआ है, लेकिन आयत का तर्जमा उसे करना नहीं आता, आयत का तर्जमा सही से करना नहीं आता। ये मैं दलील के साथ आपके सामने पेश कर सकता हूँ। और उस ब्रदर का अगर नाम ले लूँ तो आप सब हक्का बक्का हो जाएंगे, अरे किसका नाम ले लिए, तो इंटरनेशनल है। आयत का तर्जमा करना नहीं आता है, इतना आसान नहीं है शरीयत को कोई भी खिलवाड़ बना लिया है। अरे एक आदमी अगर बगैर प्रैक्टिस के अगर डॉक्टरी करने लगे, अगर वो कोई गलती करे उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। और आज आता है कोई भी मुंह उठा करके आ जाता है, दावत का काम करना चाहता हूँ, और उल्टा पल्टा फतवा लगाते हैं और कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये हलाल है, ये हराम है, ये है, वो है। इतना आसान नहीं है शरीयत को पहले पढ़िए, समझिए, गौर व फिक्र करें। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने के बाद फतवा देना आसान नहीं है। हदीस की रोशनी में हमें कुरान मजीद की आयतों को समझना पड़ेगा। अब आइए, हु विल अल्लाह गाइड, अल्लाह किसको हिदायत देगा, अल्लाह ताला किसको हिदायत देगा। तो आइए देखिए, मैंने तो बयान किया कि कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है और मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और अल्लाह ताला ने यह भी बयान किया, सूरा आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64, मशहूर व मारूफ आयत है।
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ بیان کر دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہا گیا ہے۔ اہل کتاب کا معنی ہوتا ہے کتاب والا۔ ہم بھی کتاب والے ہیں، ہم لوگوں کو بھی قرآن مجید ملا ہے، لیکن ہمیں اہل کتاب نہیں کہا گیا ہے۔ ایک ٹرم ہے جو یہود و نصارہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہمیں بھی اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، لیکن ہمیں اہل کتاب نہیں کہا گیا ہے۔ یہ سب فرق ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ سب فرق ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم علماء کرام کے پاس رہ کر کے پڑھائی کریں گے، ورنہ ہم یہاں بھی کہنے لگ جائیں گے کہ ارے ہمیں بھی قرآن ملا ہے، ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، ہمیں قرآن جیسی کتاب ملی ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ لیکن نہیں، ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے، ایک ٹرم ہوتا ہے، ایک پریبھاشا ہوتا ہے۔ شابدک ارتھ کے معنی کے اعتبار سے ہم بھی اہل کتاب ہیں، لیکن اصطلاحی معنی میں ہمیں اہل کتاب نہیں کہا گیا۔ اہل کتاب کہا گیا یہود و نصارہ کو تورات ملی، انجیل ملی۔ قل یا اہل الکتاب، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب یعنی اے یہود و نصارہ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس کلمے کے اندر ہمارے اور تمہارے درمیان میل پایا جاتا ہے، سملرٹی پائی جاتی ہے۔ وہ میل کیا پایا جاتا ہے، وہ سملرٹی کیا پائی جاتی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ وہ میل یہ ہے کہ آؤ یہود و نصارہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سر بسجود نہ ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے دربار میں بھی جا کر کے ہم ماتھا نہ ٹیکیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی اپاسنا نہ کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی پوجا پاٹ نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرے۔ ایک اللہ ہی کی عبادت، ایک اللہ ہی کی پوجا پاٹ، ایک اللہ ہی کی اپاسنا، اور اپاسنا کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ہم ایسا نہ کریں کہ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، لیکن جب نماز ختم ہوتی ہے، ہمیں جب بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں جب بیٹی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں جب پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ہم کہیں اور کا رخ کرنے لگ جاتے ہیں، کہیں درگاہ اور دربار کا رخ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس دربار میں جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں تیرے در پہ آیا ہوں، کچھ کر کے جاؤں گا، جھولی بھر کے جاؤں گا یا مر کے جاؤں گا۔ یہ ایسے الفاظ بھی ہم نہ نکالیں، ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اے یہود و نصارہ، اس عبادت کے اندر اور اس شرک کے نہ کرنے کے اندر تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان ایک میل پایا جاتا ہے، ایک سملرٹی پائی جاتی ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم یہ بھی نہ کریں کہ ہم میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنا لے۔ یہ تین چیزوں میں تمہارے درمیان ہمارے درمیان میل پایا جاتا ہے۔ اے اہل کتاب، اگر تم ان تین چیزوں کو مان لیتے ہو، ان تین چیزوں کو اگر اقرار کر لیتے ہو، ان تین چیزوں کا اگر تم سویکار کر لیتے ہو، اگر سویکار کر لیتے ہو، اگر مان لیتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں مانتے ہو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا فَاشْهَدُوا،
अगर तुम मुंह मोड़ लेते हो, अगर तुम रूगर्दानी करते हो, अगर तुम अपना चेहरा को फेर लेते हो कि हम मानने वाले नहीं है, हम इकरार करने वाले नहीं है, फकूल शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, अल्लाह के नबी आप कह दीजिए कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो आत्मसमर्पण करने वाले हैं, हम तो अल्लाह के दरबार में अपनी इच्छाओं को, अपने ख्वाहिशों को हवाले कर देने वाले हैं। अगर वो यहूद और नसारा इन तीन चीज़ों को मान लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं आप ये बबांगे दोहल ऐलान कर दीजिए, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई संपर्क नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो आत्मसमर्पण करने वाले हैं, हम तो अल्लाह के सामने तमाम की तमाम चीज़ों को अल्लाह के हवाले करने वाले हैं, हम सब के सब अल्लाह के हैं, ये आप ऐलान कर दीजिए। तो यहाँ क्या बयान किया गया कि ऐ अहले किताब को बुलाओ, पुकारो कि आओ एक ऐसे कलमा की तरफ जिस कलमा के अंदर हमारे और तुम्हारे दरमियान मेल पाया जाता है, सिमिलरिटी पाई जाती है। और ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? जब हम कुरान मजीद का मुताला करेंगे, कुरान मजीद का स्टडी करेंगे, कुरान मजीद का अध्ययन करेंगे, कुरान मजीद को पढ़ेंगे, तब हमें और आपको ये पता चलेगा। ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया क्या हो एक ऐसे कलमा की तरह जिस कलमे में हमारे तुम्हारे दरमियान मेल पाया जाता है। ये मेल उनके किताबों के अंदर भी तौहीद का बयान, तौरात, इंजील, जो आजकल हम बाइबल और न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं, तो ये तौरात इंजील ही है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। तो ये तौरात इंजील अल्लाह ताला ने नाजिल किया था, लेकिन इन लोगों ने अपनी किताबों के अंदर तब्दीली कर डाली, अपनी किताबों के अंदर परिवर्तन कर डाला, चेंजिंग कर डाली। ये कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगह पर इसकी दलील है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। इन लोगों ने अपनी किताबों को बदल डाला, इसलिए उनकी किताबों के अंदर तौहीद का भी बयान मिलेगा, शिर्क का भी कुछ बयान मिलेगा। भगवद गीता के अंदर भी तौहीद का भी बयान मिलेगा, शिर्क का बयान मिलेगा। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपनी किताबों के अंदर आकाशी पुस्तक के अंदर परिवर्तन कर डाला, लेकिन चूंकि तमाम चीज़ों को नहीं बदला, इसलिए कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ मौजूद है और हम सब सुनते आ रहे हैं। बड़े बड़े चतुर्वेदी के ज़ुबान से हम सुनते आ रहे हैं। मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ और गलती से मैं कह रहा हूँ कि जो यूट्यूबर वगैरह है, कभी मैं एक आध दो कहीं बयान करता हूँ मंत्र वगैरह, कहीं कोई चतुर्वेदी मत लिखिएगा, ये मैं अपने आप से बरी हूँ, इसलिए कि ये लिखना सही नहीं। चतुर्वेदी किसे कहा जाता है? चार वेद का ज्ञान जिसके पास, चार वेद का ज्ञान सही तरीके से हो वो चतुर्वेदी होता है। अरे मैं तो कुरान मजीद का हाफिज़ भी नहीं हूँ, तो चतुर्वेदी तो होना दूर की बात है। तो बहुत सारे लोग ये गलत लक़ब लगाते हैं, हमारे मौलवियों के अंदर भी है जो चतुर्वेदी लगाते हैं, हालांकि वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चार वेद उनको याद हो और वो अपने आप को चतुर्वेदी कहते हैं, वो मना भी नहीं करते, मना करना चाहिए। तो मैं जो बयान कर रहा हूँ कि आपको भगवद गीता के अंदर भी मिलेगा, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी मिलेगा, तौहीद का बयान मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक पेश कर रहा हूँ, भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20। पहले संस्कृत वर्जन देखिए। कामस्तैस्तैर ज्ञान प्रबद्धन्तन्यन्न देवता तम तम नियममास्था प्रकृता नियता सोया। ये भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20, ये संस्कृत वर्जन है। और इंग्लिश में कहा गया है, इंग्लिश वर्जन में, those whose intelligence has been stolen by materials desire surrender unto demigods and follow the particular rules and regulation of worship according to their own natures। माना क्या है? जो अंग्रेजी समझते होंगे समझ गए होंगे, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। क्या कहा? those whose intelligence has been stolen by materials, जो दुनियावी चीजों में मस्तो मगन है और जो पागल हो गया है, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही लोग क्या करेंगे? डिजायर सरेंडर अनटू डेमीगॉड्स, ऐसे ही लोग छोटी छोटी मूर्तियों को अपने हाथ से बना करके पूजा पाठ करेंगे। मैं ये भगवद गीता का श्लोक आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसका तर्जमा पेश कर रहा हूं। जो लोग पागल है, पागल यानी जो
टैलेंटेड और अच्छे अक्लमंद नहीं, जो पागल हो गए हैं, ऐसे ही लोग छोटी छोटी मूर्तियों को अपने हाथ से बना करके उनके सामने सजदा करेंगे। अगर आपको बदलना है तो अपनी किताब को जाकर के बदलें। वो छोटी छोटी मूर्तियों का पूजा करेंगे और अपनी तरफ से उनकी इबादत करने की कोशिश करेंगे। ये भगवत गीता के अंदर कहा गया, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन। ये ब्रह्म सूत्र जो बयान किया गया कि भगवान ईश्वर अल्लाह एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किंचित परिमाण नहीं है। ये कहाँ कहा गया? ब्रह्म सूत्र के अंदर कहा गया। पता ये चला कि अल्लाह ताला ने जो बयान किया, अल्लाह के नबी आप बुलाइए एक ऐसे कलमा की तरफ जिस कलमा में हमारे और तुम्हारे दरमियान मेल है, सिमिलरिटी है। यही मेल और सिमिलरिटी है, यही मेल है कि उनकी किताबों के अंदर भी तौहीद का बयान है, एक ईश्वरवाद का बयान है, वननेस ऑफ गॉड का बयान है, एक अल्लाह की इबादत, इस चीज़ का जिक्र उनके किताब के अंदर भी किया गया है। मैं जो बयान कर रहा था कि कुरान मजीद तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। सूरह कलम सूरह नंबर 68 आयत नंबर 52, वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए ये कुरान मजीद तमाम की तमाम इंसानियत के लिए जिक्र है, नसीहत है, तमाम की तमाम इंसानियत के लिए ये नसीहत है, इबरत है, हिदायत है। इट इज़ नथिंग बट अ रिमाइंडर टू द वर्ल्ड। ये कुछ नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए हिदायत है। ये कुरान मजीद तमाम की तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। इंसान अगर कामयाबी का रास्ता चाहता है कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा। इंसान अगर जन्नत का रास्ता पाना चाहता है कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा। इंसान अगर किसी भी मैदान में सक्सेसफुल होना चाहता है कुरान मजीद का स्टडी करना पड़ेगा। इंसान अगर चाहता है कि हमें इज्जत मिले, हमें बुलंदी मिले, हमें सरबुलंदी मिले, कुरान मजीद का मुताला करना पड़ेगा। मेरे भाई और दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल किया जाता है, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये वादा किया है, जब अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद के अंदर ये प्रॉमिस है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन को मिलेगी, बुलंदी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन को मिलेगी। सम्मान अगर मिलेगा तो सम्मान अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन को मिलेगा। जब अल्लाह ताला ने ये वादा किया है सम्मान अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, मोमिनों के लिए, तो वो इज्जत कहाँ गई, वो सरबुलंदी कहाँ गई, वो बुलंदी कहाँ गई, वो सम्मान कहाँ गया? मैं आप लोगों से भी सवाल करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा था? क्या अल्लाह तबारक व तआला का ये प्रॉमिस था? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के ज़रिए से ये वादा किया था कि मैं सिर्फ ख़ानदान की हद तक रह जाने वाले मुसलमानों को इज्जत अदा करूँगा, मैं सिर्फ खानदान के हद तक रह जाने वाले मुसलमानों को बुलंदी अदा करूंगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने यह प्रॉमिस किया था कि सिर्फ जो नाम के मुसलमान होंगे इनको इज्जत दी जाएगी, इनको सम्मान दिया जाएगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा था? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा नहीं था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा ये था कि अगर इंसान मेरे इबादत में, मेरे काम में लगा हुआ रहेगा, मैं इसकी रक्षा, मैं इसकी हिफाजत, मैं उसकी रखवाली मैं करूँगा। वो अगर परेशानी में डूबता है, अगर वो प्रॉब्लम को फेस करता है, उससे निकालने वाला, उससे नजात देने वाला, परित्राण और मुक्ति देने वाला मैं हूँ, मैं मुक्ति दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि वो मेरा काम करे, मेरी इबादत करे, मुझे याद करे, मेरा जिक्र अस्कार करे, तब जाकर के ये चीज़ें हमें मिलेंगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं जो बयान कर रहा था कि कुरान मजीद वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान मजीद पूरे दुनिया, पूरी जहान के लिए एक नसीहत है। आज मुसलमानों के हालात इस तरह क्यों हैं? इसलिए कि हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, मोमिन तो कहते हैं, ईमानदार तो कहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो कुरान मजीद का स्टडी करते हैं?
کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کا ادھین کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں یہاں جو قرآن مجید کو تلاوت کرنا جانتے ہیں دیکھ دیکھ کر کے؟ اکثر لوگ اگر آپ دیکھیں گے، اکثر لوگ قرآن مجید کو دیکھ دیکھ کر کے تلاوت بھی نہیں کرنا جانتا، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہیں کرتا، ہماری رکھوالی نہیں کرتا، ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کیسے قبول کرے گا؟ کیسے ہماری التجا اللہ کے دربار میں جا کر کے پہنچے گی؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا؟ جب ہم اللہ کے نہیں رہے، اللہ ہمارا کیسے رہے گا؟ جب ہم اللہ کو پکارنے والے نہ بنے، اللہ ہمارا کیسے رہے گا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس قرآن مجید کا جس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے اور ہم اپنے قدرت کے ذریعے سے اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے تاکہ تمہارے درمیان یہ واضح ہو جائے کہ یہ قرآن مجید یا یہ اسلام یا یہ رسول حق ہے، سچا ہے۔ سورہ فصلات یا سورہ حامیم السجدہ، اس سورہ کا دو نام ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کا قرآن اگر آپ اٹھائیں گے تو وہاں آپ کو سورہ فصلات دیکھے گا، آپ دیکھ پائیں گے کہ سورہ فصلات لکھا ہوا ہے۔ تو سورہ فصلات یا سورہ حامیم السجدہ، سورہ نمبر 41 آیت نمبر غالباً 53 اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا دیکھیے۔ এইদিকে মেয়েরা যেদিকে এইদিকে আছে, এদিকে ঝগড়া করছে মনে হয়, ভলেন্টিয়াররা কি করে? ভলেন্টিয়ার একটু দেখাশোনা করো, চিল্লাচিল্লি করছে খুব। تو میں جو بیان کر رہا تھا کہ سورہ فصلات سورہ نمبر 41 آیت نمبر غالباً 53 اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، ذرا غور سے سنیے، دیکھیے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اے لوگوں سنو، سنریہم آیاتنا، ہم ان قریب اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اے لوگوں سنو، میں اپنی نشانیوں کو تم لوگوں کو دکھاؤں گا، قدرت کی نشانیاں میں دکھاؤں گا فی الآفاق، دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چاروں طرف کونے کونے میں میری جو قدرت کی نشانیاں ہیں، ان تمام نشانیوں کو میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا۔ سورج میری نشانی ہے، چاند میری نشانی ہے، پہاڑ میری قدرت کی نشانی ہے، یہ ستارے میری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ زمین میری قدرت کی نشانی ہے، یہ آسمان بغیر کھمبے اور بغیر ستون کے پیدا کیا گیا ہے، یہ بھی میری قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ ان تمام کی تمام نشانیوں کو فی الآفاق، دنیا کے کونے کونے میں ہم دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور اے انسانوں تمہارے بدن کے اندر بھی، تمہارے نفسوں کے اندر بھی، تمہارے ذات کے اندر بھی، تمہارے باڈی کے اندر بھی، تمہارے شریر کے اندر بھی میری جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو بھی ہم دکھائیں گے۔ یہ ہاتھ میں نے دیا ہے، اس ہاتھ سے نہ جانے تم کیسے کیسے کام کر لیتے ہو، یہ پیر میں نے تمہیں دیا ہے، اس پیر سے تم چلتے ہو، اس پیر سے نہ جانے کون سا کام کر لیتے ہو۔ یہ آنکھ بہترین آنکھ میں نے تمہیں دی ہے، یہ آنکھ اگر تمہارے پاس نہ ہو تم اس دنیا کو دیکھ نہیں پاؤ گے۔ یہ زبان تمہیں دی گئی ہے، زبان کے ذریعے سے کھانا کھاتے ہو، کھانے کا مزہ بھی چکھتے ہو، زبان سے بہت سارے کام کر لیتے ہو۔ یہ دھڑکتا ہوا دل میں نے تمہیں دیا ہے، یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ یہ پورا باڈی تمہیں جو دیا گیا ہے، یہ پورا شریر تمہیں جو عطا کیا گیا ہے، یہ پورا کا پورا باڈی، یہ پورا کا پورا شریر، یہ پورا کا پورا جسم میری
कुदरत के ऊपर दलालत करता है। मैं तुम्हें ये तमाम की तमाम निशानियाँ मैं तुम्हें ये तमाम की तमाम निशानियाँ दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़, ताकि तुम्हारे सामने ये वाज़े हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि ये कुरान मजीद हक़ है, ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। ये वाज़े हो जाए कि ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद हक़ है। इस चीज़ को वाज़े करने के लिए मैं अपनी निशानियों को दिखाऊंगा तुम्हें पूरे दुनिया के किनारे किनारे में, कोने कोने में, और तुम्हारे ज़ात के अंदर। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, सूरह ज़ारियात के अंदर भी अल्लाह ताला ने बयान किया, ऐ लोगों वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ऐ लोगों तुम्हारे ज़ात के अंदर, तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर भी मेरी न जाने कितनी निशानियाँ हैं। पैर है, हाथ है, ज़ुबान है, आँख है, दिमाग है, धड़कता हुआ दिल है, पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा शरीर का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें दिया है। ये पूरा का पूरा मेरी कुदरत की निशानी है। अफला तुबसिरून, ऐ इंसान क्या अब भी तुम बसीरत से काम नहीं लोगे? ऐ इंसान क्या अब भी तुम अक्ल दानाई से काम नहीं लोगे? ऐ इंसान अब भी क्या तुम अक्ल को काम में नहीं लगाओगे? अगर तुम अक्ल को काम में लगा दो, अगर तुम ये सोचने पर लग जाओ इस सूरज को किसने बनाया, चांद को किसने बनाया, ये चमकता हुआ सितारे को किसने बनाया, ये आसमान को बेगैर खंबे और सुतून के किसने रखा, इस जमीन को किसने बनाया, पहाड़ और पर्वत को किसने बनाया, ये विभिन्न प्रकार के मखलूक को किसने बनाया, ये तमाम के तमाम चीजों का खालिक, ये तमाम के तमाम चीजों का पैदा करने वाला कौन है? तमाम के तमाम चीजों को पैदा करने के बाद उन तमाम चीजों को और उन तमाम मखलूक को रोजी देने वाला कौन है? अगर तुम गौर कर लो तुम्हें पता चल जाएगा अल्लाह के बारे में। तुम्हें इकरार करने के सिवा, अल्लाह को मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। कुरान को अल्लाह का कलाम मानने के सिवा, कुरान को अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब के सिवा, मानने के सिवा तुम्हारे सामने कोई चारा नहीं होगा। अफला तुबसिरून, इंसान क्या तुम अब भी अक्ल दानाई से काम नहीं लोगे? पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला की इस दुनिया के अंदर बेशुमार निशानियां हैं, अनगिनत निशानियां हैं। उन निशानियों के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी गौर कर ले, थोड़ा सा भी अगर फिक्र कर ले, हमें पता चल जाएगा हमारा खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, हमारा मालिक अल्लाह ताला है, हमारा राज़िक अल्लाह ताला है, हमारा पालनहार परवरदिगार हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला है। और जब वो अल्लाह हमारा रब है, जब वो अल्लाह हमारा पालनहार है, जब वो अल्लाह हमारा खालिक है, जब वो अल्लाह हमारा मालिक है, जब वो अल्लाह हमारा मालिक है और मुदब्बिरुल उमूर है, राज़िक है, तो हमें इबादत भी उसी की करनी पड़ेगी। उसके सामने ही सर्वसुजूद होना पड़ेगा, उसी के सामने माथा टेकना पड़ेगा, उसी के सामने जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उसी के सामने जाकर के हमें रोना पड़ेगा। किसी दूसरे के पास जाकर के हमें सजदा करने का कोई अधिकार नहीं, किसी दूसरे के सामने जाकर के सजदा करने का कोई हमें अधिकार नहीं। लेकिन हम करते हैं, बहुत सारे मौके पर हम करते हैं, अल्लाह के दरबार को छोड़ करके दूसरे दरबार में जाकर के सजदा करते हैं। बेटा बेटी जब नहीं मिलते चले जाते हैं सदलापुर और कुछ और कहाँ कहाँ, हमारे पीछे शैतान लगा हुआ रहता है, हम उसके वसवसे में आकर के जाते हैं और जाकर के वहाँ मन्नतें मानते। अरे जो इंसान कब्र के अंदर सोया हुआ है, न जाने उसके साथ क्या हो रहा है उसे पता नहीं। हाँ, हम ये दुआ कर सकते हैं, वो अच्छा आदमी था, उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करे और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे ये गारंटी दे सकते हैं कि वो किस हालत में है? वो हमारी बातों को सुन रहा है, वो हमारी इल्तिजा को सुन रहा है, और हमारा प्रश्न सुनने के बाद हमें आंसर देगा, हमारे परेशानियां सुनने के बाद हमें जवाब देगा और हमारी परेशानियां दूर कर देगा। ये हमें कहाँ से मिल गया?
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपनी फूफी जान सफिया से कहती है, ऐ फूफी जान सफिया अच्छे आमाल कर लिया करो, अल्लाह के दरबार में जब पहुंचोगे मैं तुम्हें एक बिंदु परिमाण भी फायदा नहीं पहुंचा सकूंगा। अपनी लखती जिगर फातिमा से कहते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा अल्लाह का काम कर लिया करो, अल्लाह की इबादत कर लिया करो, कल क़यामत का मैदान होगा, महशर का मैदान होगा, मैं थोड़ा सा भी फायदा नहीं पहुंचा पाऊंगा। ऐ अब्दे मनाफ अल्लाह का काम कर लिया करो, मैं कुछ फायदा नहीं पहुंचा पाऊंगा। ऐ अब्दे शम्स तमाम के तमाम खानदान का नाम लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतर्क और सावधान कर देते हैं, अच्छे अमल तुम कर लिया करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फिर भी मैं क़यामत के दिन तुम्हारा कोई काम नहीं आऊँगा। हाँ ये अलग बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन वो भी मौका किन लोगों के लिए होगा? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के लिए सिफारिश करेगा? जो लोग इस दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए होंगे, कुछ अमल की वजह से, कुछ गुनाहों की वजह से, चंद अपराध की वजह से वो जहन्नम में जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेगा। ये नहीं कि हम दुनिया में हम जिंदगी भर गुनाह पर गुनाह करते गए, जिंदगी भर हम अपराध पर अपराध करते गए, जिंदगी भर हम जुर्म पर जुर्म करते गए, जिंदगी भर हम गुनाह पर गुनाह करते गए और किसी पीर को बुला करके खाना खिला दिए, फातिहा करा दिए, शिरनी बांट दिए, कुछ और कर दिए, दरबार में जाकर के मुर्गा को ज़बह कर दिए, दरबार में जाकर के खस्सी को ज़बह कर दिए, दरबार में जाकर के चिल्लाने चीखने लग गए और हमें पार कर दिया जाएगा, हमें निजात दे दी जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मामला नहीं है। अरे कल या परसों मैं फेसबुक में देख रहा था, एक मज़ार में खानकाह, समझते हैं ना, जो मज़ार में बैठे रहता है और अगरबत्ती वगैरह ले आता है, वो सही से सब कुछ सजाता है और वो कहता है इस तरह से इस तरह करो। उससे एक रिपोर्टर पहुंच गया, ये शायद बांग्लादेश का वाक़या है, शायद मैंने फेसबुक में देखा, कल या परसों देखा। उसके बाद रिपोर्टर पहुंच गया, कहा अरे आप बाबा जी आप यहाँ रहते हैं? हाँ मैं रहता हूँ। अच्छा तो आप यहाँ के क्या करते हैं? कह रहे सब कुछ जो सब मन्नतें मान कर के आते हैं, अगरबत्ती वगैरह लेकर के आते हैं, तो मैं दिशा दिखाता हूँ सही तरीके से कैसे करना है, कैसे यहाँ आकर के अगरबत्ती वगैरह जलाना है, कैसे मन्नतें मानना है, मैं ये सब दिखाता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, रिपोर्टर ने क्या कहा, अच्छा आप ये सब करते हैं, तब बड़े तो पहुँचे हुए आदमी है, तो अच्छा बताइए आप नमाज़ पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता हूँ। तो नमाज़ पढ़ते हैं तो आप सना सुनाइए। कि सना? कौन सा सना? वो सना ही नहीं समझ पाए, कौन सा सना? फिर वो रिपोर्टर कहे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, नहीं वो रिपोर्टर कहे ये अहले हदीस के दरमियान ये ज़्यादा राइज है, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, हाँ सुबहानक अल्लाहुम्मा तबारक अस्मुका तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका, ये जो सना है जो अहनाफ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, हालांकि दोनों सही हदीस है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये दुआ 2-3 अल्फाज पढ़ दिए, फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहे। वो अब क्या करने लगे, जब पढ़ नहीं पा रहे हैं तब कह रहे हैं कि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, अब सोने लगे पीछे हट करके, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, मैं बैठे नहीं रह पाता हूँ। क्योंकि अभी तक आप बड़े एकदम चुस्त के साथ बात कर रहे थे, नशात के साथ, फुर्ती के साथ बात कर रहे थे, अभी मैंने जब दुआ पूछ लिया तो आपकी तबीयत ख़राब हो गई। बगल में एक और भाई बैठा हुआ है खानकाह में, उससे पूछा कि कलमा शहादा, कलमा तैयबा, पहला कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो पढ़ दिया। बाद में जब कहा कि कुछ और पढ़ो तो वो पढ़ना भी नहीं आता है, कलमा शहादा पढ़ना नहीं आता है, सूरा फातिहा पढ़ना नहीं आता है, सना पढ़ना नहीं आता है, और ये बने हुए हैं खानकाह और दरबार के आका और मालिक बने हुए हैं, और ये कहते हैं कि आओ हमारे दरबार में, पार करने वाले हमारे पीर हैं, पार करने वाले हमारे बाबा हैं, पार करने वाले हमारे ये मौलवी हैं, पार करने वाले ये हमारे हैं, यहाँ आकर के अगरबत्ती जलाओ, यहाँ आकर के मुर्गा ज़बह करो, यहाँ आकर के खस्सी ज़बह करो और हमें खिलाओ, हमारी तोंद बड़ी हो और तुम्हें पार कर दिया जाएगा। क़यामत का मैदान होगा, महशर का मैदान होगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, हर कोई ये चाहेगा कि मुझे निजात मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, हर किसी आदमी की तमन्ना होगी कि मुझे परित्राण मिल जाए,
हक्का बक्का होगा, हैरान और परेशान होगा। हक्का बक्का हैरान और परेशान में आदम अलैहिस्सलाम के पास तमाम के तमाम लोग जाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे। आए आदम, अल्लाह ताला से सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह ताला कोई फैसला कर दे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब ये सूरज की तपिश हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। आदम अलैहिस्सलाम कहेगा, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने मुझे कहा था वला तक़रबा हादिही शजरा, इस दरख्त के करीब भी ना जाना। जन्नत में मुझे रखा गया, मेरी बीवी हव्वा को रखा गया और कहा गया कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब भी ना जाना। शैतान के वसवसे में आकर के, शैतान के षड्यंत्र में आकर के, शैतान के वसवसे में आकर के मैं उस दरख्त के करीब चला गया था, मुझसे एक गलती हो गई है, पता नहीं अल्लाह ताला मेरे साथ क्या मामला करेगा। मैं सिफारिश करना नहीं चाहता, मुझे ये साहस ही नहीं हो रहा है। आदम अलैहिस्सलाम अपनी बेकरारी का इजहार कर देगा, अपनी बेचैनी का इकरार कर देगा, अपनी बेबसी का इजहार कर देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी अपनी बेबसी का इजहार कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी अपनी बेबसी का इजहार कर देंगे। तमाम के तमाम अंबिया के पास से वापस आकर के हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आएंगे, आकर के कहेंगे, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, कोई एक फैसला हो जाए, जन्नत हो जाए, जहन्नम हो जाए, जन्नत मिल जाए या जहन्नम मिल जाए, कोई एक फैसला हो जाए। यानी इतना सख्त वो दिन होगा, इतना सख्त वो दिन होगा कि इंसान तपिश ही को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मारे मतलब तकलीफ के, मारे परेशानी के वो कहेंगे अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, कोई एक फैसला हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम लोगों की फरियाद सुनने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में जा कर के गिर जाएंगे, सजदे में जा कर के पड़ जाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर पड़े रहेंगे। उस वक्त तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को नहीं उठाएंगे जब तक अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा, या मोहम्मद इरफा रासक, या मोहम्मद सल तूता इशफा तुशफ़ा, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, इरफा रासक या मोहम्मद सल तूता, तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा, इशफा तुशफ़ा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। ये जब जुमला कहा जाएगा तो अल्लाह के नबी अपने सर को उठाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सिफारिश करेंगे। और ये सिफारिश किन लोगों के लिए होगी? जो लोग अच्छे अमाल करेंगे, कुछ अमाल करेंगे, कुछ गुनाहों की वजह से उनको जन्नत में जाने में दिक्कत होगी, ऐसे लोगों के लिए सिफारिश होगी। ये नहीं कि हम जिंदगी भर गुनाह पर गुनाह करते गए, पीर का दामन पकड़ते रहे, दरबार का दामन पकड़ते रहे, मुर्गा मुसल्लम दरबार में, खानका में जाकर के, दरगाह में जाकर के हम देते रहे और हमें परित्राण मिल जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें निजात मिल जाएगी, ऐसा मामला नहीं है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि आज कुरान मजीद का स्टडी करने की ज़रूरत है, कुरान मजीद का मुताला, कुरान मजीद का अध्ययन करने की ज़रूरत है। जब तक कुरान मजीद को पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं होंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा। आखिरी एक बात कह करके मैं ख़त्म करूँगा। सूरह इसरा, सूरह नंबर 17 या सूरह बनी इसराइल भी उसे कहा जाता है, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 44। इस आयत के अंदर क्या कहा गया देखिए, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। ऐ दुनिया के लोगों, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, वइन मिन शैइन, शैइन नकिरा का लफ्ज़ है, अन्नकिरा तुफीदुल उमूम। उलमा इकराम जानते हैं नकिरा उमूम का फ़ायदा देता है। व इम मिन शैइन, इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं,
इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, तमाम के तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह पाठ करती है, अल्लाह तबारक व तआला का हम्द बयान करती है। चाहे वो पाताल में रहने वाली मछली हो, चाहे वो आकाश में उड़ने वाला परिंदा हो, चाहे वो पहाड़ और पर्वत हो, चाहे वो ज़मीन के कंकर हो, चाहे वो कुछ भी हो, तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह की तस्बीह पाठ करती है। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन इंसानों तुम्हें पता नहीं चलता है कि वो लोग कैसे अल्लाह की तस्बीह पाठ करती हैं। उनके तस्बीह पाठ करने की कैफियत तुम्हें पता नहीं चलता है, तुम्हें पता नहीं चलता है, तुम्हें मालूम नहीं पड़ता है कि वो कैसे अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ करती है। तुम्हें पता नहीं चलता है कि पानी के अंदर रहने वाली एक मछली अल्लाह ताला की तस्बीह कैसे पाठ करती है। तुम्हें ये पता नहीं चल पाता है आकाश में और भवन में उड़ने वाला एक परिंदा, एक आकाश में उड़ने वाला एक परिंदा कैसे, पक्षी कैसे अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ करता है। तुम्हें पता नहीं चलता है एक जमादात कैसे अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ करते हैं। तुम्हें पता नहीं चलता है एक पहाड़ कैसे अल्लाह ताला का हम्द बयान करता है। तुम्हें पता नहीं चलता है। आइए मेरे भाइयों दोस्तों, एक वाक़या मुख्तसरन मैं बयान करके ख़त्म करूँगा। अमेरिका और लंदन के अंदर ये वाक़या पेश आया और तूबा नामी एक मैगज़ीन के अंदर भी वाक़या को बयान किया गया। कुछ अमेरिका के अंदर कुछ साइंटिस्ट और वैज्ञानिक बैठ करके अपने कंप्यूटर को ऑन किए हुए, ये अपने कंप्यूटर को ऑन किए हुए दरख्तों की तहकीक कर रहे थे, दरख्तों को लेकर के रिसर्च में लगे हुए थे। इतने में उनके कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर लाल लाल रेखाएं, रेड लाइन उनको दिखाई दी। उन लोगों ने उस चीज़ को समझने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाए। एक दूसरे से बासो मुबासा हुआ, एक दूसरे से डिस्कस हुई, एक दूसरे से गुफ्तगू हुई, पता नहीं चला ये रेड लाइन क्यों आ रही है। वही वो वाक़या बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद सेम टू सेम वही वाक़या लंदन के अंदर भी पेश आता है। वहाँ भी कुछ साइंटिस्ट, वहाँ भी कुछ वैज्ञानिक अपने कंप्यूटर के मॉनिटर को ऑन करके, कंप्यूटर को ऑन करके और मॉनिटर का स्क्रीन भी ऑन था और वो भी दरख्त के तहकीक में, रिसर्च में लगे हुए थे। उन लोगों ने भी देखा कि कंप्यूटर के मॉनिटर की स्क्रीन पर रेड लाइन दिखाई दी। उन लोगों ने भी समझने की कोशिश की, इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नहीं पहुंच पाए। उनको ये पता नहीं चल पाया। इत्तेफाक से वहाँ एक मुसलमान साइंटिस्ट था, एक मुस्लिम साइंटिस्ट, एक मुस्लिम वैज्ञानिक था। उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा, ऐ लोगों, तुम्हें ये तमाम चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, मेरे पास इसका इल्म है, मेरे पास इसकी जानकारी है। चूँकि वो मुस्लिम साइंटिस्ट कुरान मजीद से वाकिफ़ था, कुरान मजीद के बारे में उसे जानकारी थी, कुरान मजीद वो पढ़ता था, इसलिए उन्होंने कहा ये जो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर रेड लाइन दिखाई दे रही है, जो लाल लाल रेखाएं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है। सूरह बनी इसराइल, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 44 है, वइम शय्इन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबके सब अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ करती है। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन इंसानों तुम्हें पता नहीं वो कैसे तस्बीह पाठ करते हैं। ये जो रेड लाइन आ रही है, ये जो लाल रेखाएं दिखाई दे रही है, इसका साफ मतलब है ये जो तुम दरख्त को लेकर के तहकीक में लगे हुए हो, दरख्त का जो तुम रिसर्च कर रहे हो, ये सब के सब दरख्त अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ कर रही है। ये सब के सब दरख्त अल्लाह तबारक व तआला का हम्द बयान कर रहे हैं। और फिर उस साइंटिस्ट ने ये भी दिखाने की कोशिश की, जब वो आगे बढ़ करके उस मॉनिटर में झांकने की कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मॉनिटर के स्क्रीन पर अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान अल्लाह और इस तरह के जो जिक्र अस्कार के कलिमात हैं ये साफ साफ तौर पर दिखाई देने लगे। जब ये मंजर तमाम के तमाम साइंटिस्ट के सामने ये मंजर दिखाई दिया, तमाम के तमाम वैज्ञानिक ने वहाँ जब ये दृश्य देख लिया, ये मंजर देख लिया कि हम आज इस दरख्त के पीछे लगे हुए हैं, इस दरख्त के रिसर्च में लगे हुए हैं
اور یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاٹ کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ 1450 سال پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ آج ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ درخت بھی اللہ کی پرشنسا کرتا ہے، آج ہمیں یہ پتا چلا یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، آج ہمیں یہ پتا چلا یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرتا ہے۔ اس لیے سب کے سب ہکا بکا رہ گئے، سب کے سب حیران و پریشان رہ گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہاں کے جو ہیڈ سائنٹسٹ تھے جن کا نام ولیم براؤن تھا، اور یہ سچا واقعہ ہے، یہ واقعہ میرے استاد محترم مولانا مظہر علی مدنی حفظہ اللہ، جو جامعہ اسلامیہ فیض عام کے ابھی فی الحال صدر شیخ الجامعہ ہے، انہوں نے طوبہ نامی ایک میگزین میں اس واقعہ کو بیان بھی کیا ہے کہ جب وہ اس کا ہیڈ سائنٹسٹ ولیم براؤن نے یہ درشیہ دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ مانیٹر کے اسکرین کے اوپر یہ صاف صاف دکھائی دیا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے ذکر و اذکار کے کلمات جب دکھائی دیے، وہ ہکا بکا رہ گئے اور وہ پریشان اور حیران ہو گئے کہ قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کے بارے میں اتنے دن پہلے بیان کیا گیا ہے، آج ہمیں اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی مشقت کرنے کے بعد، اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد آج ہم اس کی تہ تک پہنچ پائے۔ وہ اس واقعہ کو دیکھنے کے بعد، یہ درشیہ دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلم سائنٹسٹ سے کہ میں قرآن مجید کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت کا ورد کر کے وہ ولیم براؤن نامی ایک سائنٹسٹ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس قرآن مجید سے پربھاوت ہو کر کے، جس قرآن مجید سے متاثر ہو کر کے، جس قرآن مجید سے امپریسڈ ہو کر کے غیر مسلم بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور ہیں، غیر مسلم بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان کہاں ہیں؟ آج ہم مسلمان کہاں اپنی جوانی کو ختم کرتے ہیں؟ کہاں اپنے جیون کو، اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو ختم کر رہے ہیں؟ کہاں اپنے ٹائم اور وقت کو ہم ختم کر رہے ہیں؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے جیون کو، اپنی عمر کو، اپنے لائف کو، اپنی پوری زندگی کو قرآن مجید کے پیچھے لگائے۔ آج ہم اپنی جوانی کو دیوانی نہ بنائے، آج ہم اپنی جوانی کو مستانی نہ بنائے، آج ہم اپنی جوانی کو دیوانی بنا کر کے رنگ رلیوں میں ختم نہ کریں، بلکہ آج ضرورت ہے نوجوانوں، آؤ قرآن مجید کی طرف، آؤ قرآن مجید کے اسٹڈی کی طرف، آؤ قرآن مجید کے ادھین کی طرف، آؤ قرآن مجید کے اندر کون کون سے ہیرے، جواہرات اور موتیاں ہیں، اگر جاننا چاہتے ہو تو آؤ قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید کا مطالعہ کرو، قرآن مجید کا اسٹڈی کرو، قرآن مجید کا ادھین کرو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وقت ختم ہو گیا، کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا، میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید کا اسٹڈی، قرآن مجید کا ادھین کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہے، قرض لیے، ادھار لیے ہوئے ہیں، ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔